گوری کو اپنی ساس بالکل پسند نہ تھی۔ گوری اور کالو نے پسند کا ویبھا کیا تھا۔ کالو جی آپ تو جا رہے ہیں شہر کام کرنے، میرا خیال کون رکھے گا؟ میں تو اکیلی پڑ جاؤں گی۔ گوری ماں ہے نا تمہارے ساتھ، تم بالکل چنتا مت کرو۔ اس بڑھیا کا تو نام مت لو میرے سامنے۔ گوری آہستہ بولو، ماں سن لے گی۔ مجھے نہیں پتا کالو، مجھے بھی تمہارے ساتھ شہر والے جنگل جانا ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ بس گوری 2 مہینے یہاں گزار لو، جیسے ہی میرے پاس کچھ پیسے جمع ہوں گے میں تمہارے لیے شہر والے جنگل میں گھر بنا لوں گا۔ پھر کالو کوا اپنا سامان اٹھاتا ہے اور شہر والے جنگل جانے کو نکل جاتا ہے۔ کالو کے جاتے ہی گوری کوی اپنی ساس سے کہتی ہے، میں اپنی ماں کے گھر جا رہی ہوں۔ اچھا بیٹی، دھیان سے جانا۔ لیکن گوری اپنی ساس کی آدھی بات سن کر ہی نکل جاتی ہے۔ گوری کوی اپنی ماں کے گھر کی طرف جا رہی تھی کہ اسے راستے میں لومڑی نظر آتی ہے۔ لومڑی بھوکی لگ رہی تھی۔ گوری اونچے پیڑ کی شاخ پر بیٹھ جاتی ہے۔ ایسے تو میری ساس سے میری جان نہیں چھوٹے گی، اگر میں اپنی ساس کو اس لومڑی کا بھوجن بنا دوں تو ہی کچھ ہو سکتا ہے، لیکن پہلے ماں سے ملاتی ہوں۔ گوری اپنی ماں کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ ہاں گوری بیٹی، یہ یوجنا بہت اچھی ہے، اس سے سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ تو اپنی ساس کو لومڑی کا بھوجن بنا دے۔ دونوں ماں بیٹی ہنسنے لگ جاتی ہیں۔ گوری کی بھابھی گھر میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ ماں اس سے سارا کام کرواتی ہو نا؟ ہاں گوری بیٹی، سارے کام کرواتی ہوں گھر کے۔ ماں جی، آپ گوری کو الٹے مشورے کیوں دے رہی ہیں؟ گوری کی بڑھی ساس بھلا کیا کہتی ہے گوری کو؟ گھر کے کام تو ہر بہو کرتی ہے۔ بہت زبان چلنے لگ گئی ہے تیری۔ گوری کی ماں اپنے پاس پڑی لاٹھی اٹھاتی ہے اور اپنی بہو کے ایک زوردار لگاتی ہے۔ ایسے ہی مارا کرو اسے، ماں بہت زبان چلاتی ہے یہ۔ گوری اور اس کی ماں زوروں سے ہنسنے لگ جاتی ہیں۔ گوری کوی اپنے گھر واپس آ جاتی ہے اور اپنی ساس سے کہتی ہے، ساسو ماں تم تو ہر سمے گھر میں رہتی ہو، چلو جنگل گھومنے چلتے ہیں۔ نہیں گوری بیٹی، اس عمر میں مجھ سے زیادہ اڑا نہیں چاہتا اور ساری عمر جنگل ہی دیکھا ہے، اب تو آرام کرنے کی عمر ہے۔ ساسو ماں چلو نا، میں نے آج پہلی بار تم سے کچھ کہا ہے۔ پھر گوری کی ساس مان جاتی ہے اور اپنی بہو گوری کے ساتھ جنگل میں نکل آتی ہے۔ گوری کوی تیز تیز اڑتی ہوئی پہاڑوں کی طرف نکل جاتی ہے۔ گوری کی ساس بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی تھی۔ وہاں پہاڑوں کے بیچ ایک سوکھا پیڑ تھا۔ گوری کوی اس پیڑ پر بیٹھ جاتی ہے۔ ساسو ماں تم تھک گئی ہوگی نا؟ ہاں گوری بیٹی، میں تو بہت تھک گئی ہوں، اور تو یہاں کہاں ویرانے میں لے آئی ہے مجھے، بہت پیاس لگی ہے۔ اچھا ماں تم یہی رکو، میں ابھی جا کر کہیں سے پانی لے کر آتی ہوں۔ ایسا کہہ کر گوری کوی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ گوری کی ساس کے پاس ہی چیل کا گھونسلہ تھا جس میں 2 انڈے تھے۔ لومڑی لومڑی تمہارے لیے ایک شکار ہے پہاڑوں کی طرف، میں اپنی ساس کو وہاں چھوڑ کر آئی ہوں، جا جلدی سے جا کر اسے کھا لے۔ لومڑی پہاڑوں کی طرف بھاگتی ہے اور بڑھی ساس کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ لومڑی تو بھاگ جا، چل بھاگ جا یہاں سے۔ ایک تو کوی اور ساتھ چیل کے انڈے، واہ مزہ آ جائے گا۔ نانا لومڑی بیٹی، کسی پکشی کے انڈے پینا بہت بری بات ہے۔ مجھے مت سکھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اتنی دیر میں وہاں چیل بھی آ جاتی ہے۔ لومڑی چیل کو دیکھ کر ڈر کر 2 قدم پیچھے ہو جاتی ہے۔ میرے گھونسلے کے پاس اتنی بھیڑ، تم دونوں یہاں کیا کر رہی ہو؟ بیٹی چیل، یہ لومڑی تیرے انڈے پینے لگی تھی، میں اسے روک رہی تھی۔ لومڑی جب سے میرے انڈے ہوئے ہیں میں نے ماंس کھانا بند کر دیا ہے، اگر میں ماंس کھاتی ہوتی تو تجھے بتاتی۔ لومڑی ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ ماں جی آپ کا بہت بہت دھنیہ واد، یہ لیں یہ میٹھا پھل آپ کا انعام ہے۔ گوری کوی کی ساس مزے سے میٹھا پھل لے کر گھر آ جاتی ہے اور سیدھا اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ یہ بڑھیا بچ کر واپس کیسے آ گئی؟ یہ تو بہت تیز ہے، اب تک تو اسے پتا چل گیا ہوگا
कि मैं इसे धोखे से वहां छोड़ कर आई थी। फिर अगली सुबह गौरी कवि के दरवाजे पर दस्तक होती है। गौरी जाकर दरवाजा खोलती है तो बाहर लड्डू पकड़े चील खड़ी थी। चील चील, कालू चील, घर में चील घुस आई है, भागो। रुक जा बहू, चील मुझसे मिलने आई होगी। फिर गौरी की सास घर से बाहर जाती है और काफी देर तक चील से बातें करती है और लड्डू लेकर घर के अंदर आ जाती है। अरे वाह माँ, तुमने चील से दोस्ती कर ली है। बड़ी खतरनाक है सासू माँ आप तो। गौरी कवि जंगल घूमने जाती है। कबूतर और तोता पेड़ पर बैठे बातें कर रहे थे। हाँ यार तोते, कालू की माँ तो बहुत बहादुर निकली। सुना है चील के साथ दोस्ती है उसकी। गौरी के तो मजे हो गए, ऐसी सास जो मिल गई। गौरी ये सब सुनकर बहुत जलती है। अब तो उस बुढ़िया का कुछ करना होगा। चील से दोस्ती है उसकी, अगर मैंने सबके सामने कुछ कहा तो सारा इल्जाम मुझ पर आएगा। घर के अंदर ही कुछ करना होगा। गौरी कवि घर जाती है और अपनी सास को रस्सी से बांध लेती है और घर के बाहर पेड़ के नीचे आकर अपनी सास को जमीन पर रखकर उस पर मिट्टी डालना शुरू करती है। तुझे मारना ही पड़ेगा, मैं तेरे साथ नहीं रह सकती, तुझे मारना ही पड़ेगा। छोड़ दे मुझे, गौरी बहू पागल हो गई है क्या? रानो चिड़िया चील, कबूतर और तोते को लेकर वहां आ जाती है। गौरी कवि डरकर भाग जाती है। रानो चिड़िया गौरी की सास की रस्सी खोलती है। शाम हो जाती है लेकिन अब तक गौरी वापस नहीं आई थी। माँ, मुझे बहुत गुस्सा है गौरी पर। एक बार वापस आ जाए, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। छोड़ बेटा, बस वापस आ जाए, मैं माफ कर दूंगी अपनी बहू को। माँ, मैंने अपनी पसंद से शादी की थी। काश मैं आपकी पसंद की किसी पक्षी के साथ शादी करता तो ये दिन ना देखना पड़ता। बेटा, अब पछताए क्या फायदा, जब गौरी चुग गई खेत। कालू की माँ और कालू ऐसे ही हंस रहे थे कि गौरी भी घर वापस आ जाती है। सासू माँ, मैं अकेली नहीं रह सकती, मुझे माफ कर दे, मैं आज के बाद आपकी अच्छी बहू बनकर रहूंगी। फिर गौरी की सास गौरी कवि को माफ कर देती है और वह सब हंसी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया बहुत अच्छे मन की चिड़िया थी। वो सबकी मदद करती थी, कभी किसी का भी बुरा नहीं सोचती थी। रानो चिड़िया भोजन खोजने घर से निकली हुई थी। रानो चिड़िया नदी के पास से गुजरती है तो देखती है कि एक सांप नदी के पानी में बहता हुआ आगे को बढ़ता जा रहा है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो। रानो चिड़िया उस सांप की आवाज सुनती है और जल्दी से नदी की तरफ बढ़ती है। रानो चिड़िया सांप को अपने पंजों में उठाती है और नदी किनारे ले आती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे, आप तो सांप भैया के बेटे हैं। आपके पापा कहाँ हैं बेटा, और आप नदी में कैसे गिर गए? चिड़िया आंटी, मैं एक बॉल से खेल रहा था, मेरी बॉल नदी में गिर गई। मैं वो बॉल लेने नदी में गया था। बेटा, आप अभी छोटे हैं, आपको ऐसे अकेले अपने पापा के बिना जंगल में नहीं घूमना चाहिए। ठीक है चिड़िया आंटी, अब मैं घर जाता हूँ। वो सांप का बच्चा अपनी बिल की तरफ चला जाता है और रानो चिड़िया जंगल में आगे बढ़ती है। रानो चिड़िया को मीठे फलों का एक पेड़ मिल जाता है। अरे वाह, आज तो इतनी जल्दी भोजन मिल गया। ऐ ऊपर वाले, तेरा शुक्र है। रानो चिड़िया मीठे फल तोड़ती है और वापस घर की तरफ उड़ती है। कालू, उठ जाओ और मुझे कुछ खाने को ला कर दो, मुझे बहुत भूख लगी है। लेकिन कालू तो घोंसले में आंखें बंद करके लेटा हुआ था। कालू, मैं क्या कह रही हूँ, तुम सुन रहे हो? उठो और भोजन खोजने जाओ। गौरी, रानो चिड़िया अपना भोजन खुद खोजती है, तुम भी खुद खोजने जाओ। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे भूख नहीं है। जब भूख होगी मैं तभी जाऊंगा भोजन खोजने। तुम्हें अगर भूख लगी है तो तुम खुद खोजने चली जाओ।
अगर मैंने अपना भोजन खुद ही खोजना था तो मुझे तुमसे शादी करने की क्या जरूरत थी। आलसी कौवे, तुमसे शादी करके तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। बस रोज एक ही बात। कालू घोंसले में दूसरी तरफ मुंह करके सो जाता है। लगता है आज मुझे खुद ही जाना होगा। गौरी कवि भोजन की खोज में अपने घर से निकलती है। गौरी जंगल में काफी देर तक घूमती रहती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। मुझे तो भोजन खोजना आता ही नहीं है। अब क्या करूं मैं? कहाँ से मिलेगा भोजन? तभी गौरी कवि देखती है कि सामने से बिल्ली का बच्चा जा रहा था और उसके पास एक चिप्स का पैकेट भी था। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, इस बिल्ली के बच्चे का चिप्स का पैकेट छीन लेती हूँ। गौरी कवि उस बिल्ली के बच्चे के पास जाती है। छोटे बिल्ली के बच्चे, तूने ये चिप्स का पैकेट कहाँ से लिया? मियाओ, ये मैं तोते अंकल की दुकान से खरीद कर लाया हूँ। मेरी मम्मा ने मुझे पैसे दिए थे। मियाओ। वैसे तेरी माँ कहाँ है? वो तो घर है। वो देख, तेरी माँ भी आ रही है। बिल्ली का बच्चा पीछे मुड़कर देखता है और गौरी कवि उतनी देर में उसका चिप्स का पैकेट लेकर भाग जाती है। मेरी चिप्स, मेरी चिप्स, कॉफी मेरी चिप्स ले गई। मियाओ मियाओ। सामने से रानो चिड़िया आ रही थी। बिल्ली के बच्चे को रोता देखकर रानो चिड़िया उसके पास आती है। क्या हुआ बेटा, आप रो क्यों रहे हो? रानो आंटी, मैं यहाँ बैठा अपने चिप्स खा रहा था। एक कौवी आई और मेरा चिप्स का पैकेट छीनकर भाग गई। जरूर वो गौरी कवि होगी। अच्छा बेटा, आप रो मत, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको तोते भैया की दुकान से चिप्स ले देती हूँ। रानो चिड़िया उस छोटे बिल्ली के बच्चे को लेकर तोते की दुकान पर जाती है और उसे चिप्स ले देती है। गौरी कवि बड़े पेड़ की शाख पर बैठी मजे से चिप्स खा रही थी। वहाँ चील आ जाती है। चील, तुम यहाँ क्यों आई हो? कवि, चील जंगल में तभी आती है जब उसे भूख लगी हो। मुझे भी बहुत भूख लगी है और आज तो मुझे शिकार भी बहुत जल्दी मिल गया। चील, मेरे जैसी काली कवि को खाकर तेरा रंग भी काला हो जाएगा और मैंने तो खुद 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मुझे खाकर क्या बनेगा तेरा? अगर तू चाहती है कि मैं तुझे ना खाऊं तो जल्दी से मेरे शिकार का इंतजाम करके दे मुझे। चील चाची, तू उस मोटी चिड़िया का शिकार क्यों नहीं करती? कालू दिन रात मुझे उसका नाम ले लेकर ताने देता रहता है। अगर तू उसका शिकार करे तो मेरी जिंदगी भी आसान हो जाएगी। वो चिड़िया तेरे जैसी बेवकूफ नहीं है, इतनी आसानी से नहीं आएगी वो मेरी बातों में। फिर आज मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं उस चिड़िया को उसके घर से बाहर बुलाऊंगी, फिर तू जाने और चिड़िया। ठीक है काफी, फिर जल्दी चल, मुझे बहुत भूख लगी है। दोनों चील और कवि रानो चिड़िया के घर की तरफ उड़ती हैं। वो दोनों रानो चिड़िया के घर के सामने पहुंच जाती हैं। गौरी कवि रानो चिड़िया के घर के सामने पेड़ के नीचे खड़ी होकर रानो चिड़िया को आवाज देती है। रानो चिड़िया, जल्दी बाहर आओ। ये तो गौरी कवि की आवाज है। रानो चिड़िया बाहर गौरी कवि के पास आती है। जी गौरी बहन, बताएं क्या बात है? सामने से सांप आ रहा था। चील तो सांप को देखकर ही भाग जाती है। रानो, मुझे बचाओ, वो देखो सांप आ रहा है सामने से। रानो चिड़िया, इस कौवे को छोड़ना मत, मैंने अपने कानों से सुना ये कौवे उस चील के साथ मिलकर तुम्हें मारने का प्लान बना रही थी। ये सांप खुद से बातें बना रहा है। रानो, ये तो हम पक्षियों का दुश्मन है हमेशा से। रानो चिड़िया, तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई थी, इसलिए आज मैं तुम्हारी जान बचाने आ गया। इस जैसे कवि का दोबारा भरोसा मत करना। गौरी बहन, एक पक्षी होकर आप दूसरे पक्षी का बुरा सोचती हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। रानो चिड़िया अपने घर के अंदर चली जाती है और सांप अपनी बिल की तरफ। शुक्र है बच गई, वरना मुझे तो लगा था आज सांप मुझे मार ही डालेगा। गौरी के पीछे से बिल्ली बोलती है, मियाओ।
सांप से तो बच गई, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। कभी तूने मेरे बेटे की चिप्स छीनी उससे। गौरी कवि वहाँ से भागती है, लेकिन बिल्ली भी गौरी कवि के पीछे ही भागती है। गौरी आगे आगे थी और बिल्ली पीछे पीछे। गौरी कवि ने रानू चिड़िया का बुरा सोचा था और अब खुद ही अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।